have amongst us Samrat Bhardwaj sir, who is currently a software engineer at Atlassian, and he had also been a mentor. Currently, he is a mentor at Web Coding, and it's almost been 3 years to sir since he is mentoring at Web Coding. Apart from that, sir has been an SDE intern at Amazon and an educator at Geekster. So I hope you all are excited to have sir amongst us. Are you all excited? Can I expect you to write something in the chat box? Come on, write excited in the chat box. Aren't you all excited? Sir, बार बार नहीं आएंगे आपके आंसर करने questions. Okay, it seems Himanshu Singh. Okay, you all are excited. Okay. Okay, interesting. Okay, so let's start with it. Okay. So, sir, what do you think? What about your journey? Can you elaborate on your journey and अब तक का सफर कैसा रहा? Right. एकदम starting से start करेंगे from and then I'll come to this point, this exact point where we are today. And yes, it had all those hurdles, goods, bads, ups and highs. तो सब सुनना थोड़ी देर, फिर बात करेंगे कि कहाँ कैसे क्या तुम लोग कहाँ पे हो, how you guys can improve or how you guys can take this path or whatever path is best for you. सब बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो अभी what I can do is एक बार मेरे को let's start with my journey also. एकदम जेई से start करेंगे. तो वहाँ से एक बार मेरे को ना ये देना, I don't have presentation rights, ये देना मेरे को. Then I'll share my screen, and then because whenever I try to say something, I like to write something. So कुछ लिखता रहूँगा. Okay, so can I expect Brahmdeep to share the rights? हाँ, now I have. Yeah. ठीक है. ठीक है. Let's hope. My bad. Okay. So I'm using two screens, so I can see your chat. तो बोलते रहना कुछ मन करे जो भी देख रहा हूँ मैं. चलो देखो एकदम मतलब what are we afraid of today? I was thinking about, मैं सोच रहा था कि how can we start this? If anybody is not comfortable with हिंदी तो बता देना. We can convert only in English as well. तो हाँ, I was thinking about that. How should I start this session with? Then I thought about this word, failure. Sorry about my handwriting. So see, I'll tell you a story. When I was in 12th and I had pre-boards and all, so सब JEE की preparation करी है क्या? I think most of you have prepared for it. तो जब JEE की हम लोग preparation कर रहे थे तो we used to go to Narayana, FIITJEE, Akash, जो भी, right? And guess, so after 12th I gave this JEE mains and guess my rank. जो worst सोच सकते हो सोचो. Guess my rank. Around, so my rank was 9 lakh. It was 9 lakh, and in 9 lakh you score around 9 out of 360. So ऐसा कुछ मेरा score था, and I was like ठीक है, this is what it is. And after that I realized कि ठीक है यार, मेंस देना पड़ेगा. हाँ 10 लाख नहीं, but almost 9 lakh. And then this was the drop year, was the year where I learned all the things कि कैसे unit. I didn't learn physics, chemistry, maths, वो तो छोटी चीजें हैं. I learned कि कैसे तुमको जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ना पड़ता है. My thought is that you will have to study at least twice or thrice in your life. बाकी मत पढ़ो, बाकी मजे मारो यार, पर 2-3 बार जिंदगी में तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो this was my drop year. So I prepared for JEE mains and all, and next year I got a rank of 55,000 something. So but this was 1 year where I was studying 6 hours daily, plus I was going to my coaching, जो कि अराउंड 7-8 घंटे ले जाता था, राइट? तो ठीक है, तो मतलब तुमको 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा. एक बार तो तुमने चलो ठीक है, अब कॉलेज वाला डिसीजन तो हो गया. देखो आई एम नॉट फ्रॉम NSIT DTU, इसके बाद भी नहीं मिलता है यार ये 55,000 में. तुमको लगता है NSIT DTU या NIT वगैरह तो नहीं मिलता, नॉट फ्रॉम IIT.
I am from IPU, so I'm from MAIT. सुनेंगे यार, सेशन के बाद सुनेंगे गाने, रुक जाओ. हाँ, तो I am from MAIT, which is a college of IPU, जो पता होगा मोस्टली. ठीक है. And then so let's start from MAIT as well. First year, अब तो एक साल में यार मैं 9 लाख से 55,000 पे आ गया. मैंने बहुत कुछ काट लिया. अब तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा. दिस इज मी इन फर्स्ट ईयर. एक साल में मैंने बहुत कुछ काट लिया. अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा. अब तो मैं चिल मजे करूंगा यार. और एट दैट टाइम मेट का एवरेज प्लेसमेंट वाज, आई थिंक इट स्टिल इज 30,000 पर मंथ. मोस्टली टीसीएस इन्फोसिस वगैरह में बच्चे जाते थे. एंड इट वाज 30,000 पर मंथ. मैंने कोरा वोरा बहुत किया था. एंड आई वाज ठीक है यार, अब मास्टर्स करेंगे, 4 साल मौज मारेंगे, चौथे साल में पढ़ाई करके मास्टर्स करेंगे, फिर बस 1 करोड़ की सैलरी अपनी. तो दिस वाज माय थॉट्स इन फर्स्ट ईयर. एंड फर्स्ट ईयर में ऐसे ही चल रहा है. देयर वाज वन सोसाइटी, आईओएसडी ऐसा कुछ करके सोसाइटी होता है, तो जिसमें तुम लोगों को लेके जाते हैं ना कि चलो यार फॉर्म भर दो, बढ़िया सोसाइटी एंड ऑल. बट आई डिडंट ज्वाइन एनी सोसाइटीज. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग. मतलब आजकल यू गाइज आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि ठीक है यार कोडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है. हमारे टाइम पे तो जीरो अवेयरनेस था. प्री कोविड एरिया, तो प्री कोविड वाले टाइम में अपने पास यूट्यूब वगैरह भी इतना नहीं चलता था. तो फर्स्ट ईयर में चिल्ड, कंप्लीटली चिल्ड, फ्लैट फ्लैट ले लिया, समझ रहे हो, वो वाला चिल चल रहा है एकदम मजे से. कुछ कुछ पढ़ाई नहीं. सेकेंड ईयर में आई सेड ठीक है, लेट्स स्टार्ट कोडिंग, क्या पता जॉब ही ले लेते हैं, छोड़ो मास्टर्स. सेकेंड ईयर में somebody told me कि देख, whatever you want to do, if you want to do web dev, if you want to do Android, डेटा साइंस, जो भी करना है करो, बट इन सबसे पहले ना यू नीड टू स्टार्ट विथ डीएसए. आई सेड ओके. मैं बोला ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद डीएसए. अब I started taking courses, pirated courses. I'll be honest. तो pirated courses मैंने लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया. तो I stopped there. मैंने Geeks for Geeks स्टार्ट ट्राई किया, कुछ समझ में नहीं आया. मतलब मैंने लैंग्वेज सीखी नहीं. I started solving questions from arrays and all. कुछ समझ में नहीं आया. Then I stopped. Then I thought कि क्या कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. And then there was this institute, Pep Coding. Maybe you must have heard about it or not sure. So I joined Pep Coding, but before even Pep Coding, the problem was कि करना क्या है. I thought about let's do web dev, but web dev से पहले मेरे को किसी ने बोला है, तो अब किसी की बात हम सुन रहे हैं, डीएसए करना है. देखो, I'm sure most of you guys must have faced this कि हम डीएसए करें तो कहाँ से करें. Important question कि कहाँ से करें. अब तो बहुत रिसोर्सेज हैं. यू गाइस कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम, कुछ भी कर सकते हो, राइट. यूट्यूब से पढ़ सकते हो पूरा. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बंद भी हो गए हैं, बट एनीवेज. और जो ये जो था, एज आई सेड, आई ट्राइड यूट्यूब. अब आई एम अ डम स्टूडेंट, मतलब नॉट सेइंग डम, बट आई एम दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट कि अगर मेरे को होमवर्क दोगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है. अगर मेरे को मजदूरी वाला काम दोगे तो मैं कर दूंगा. लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं तेरे पास कोई काम नहीं है, तो आई स्वाइप इंस्टाग्राम. तो अगर मेरे पास काम है तो ठीक है. अब यूट्यूब पे यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत बढ़िया. अगर आप कह रहे हो कि मैं दिन का 4 घंटे बैठ के यूट्यूब के सामने बैठ जाऊंगा, वो जो पढ़ाएंगे मैं पढ़ लूंगा, फिर तो बहुत बढ़िया. यू हैव फ्री रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया, दुनिया भर के अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पता है. मैं बता करेंगे इसके ऊपर भी बात कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, विच टॉपिक शुड बी स्टडीड फ्रॉम विच यूट्यूबर एंड ऑल. तो ये तो नहीं हो पाया मेरे से. ये इतना अच्छा स्टूडेंट तो नहीं हूँ मैं कि सामने से बैठूंगा और मेरे को कोई पढ़ाएगा, मेरे को यूट्यूब पे पढ़ने को मिलेगा, मैं किसी दूसरी वीडियो को देखने नहीं चले जाऊंगा. तो ये नहीं हुआ, ठीक है. अब दूसरा वाज जस्ट बाय योर कोर्स. एंड दिस में, इसमें भी देर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज, राइट. एक लाइव होता है, जैसे अभी अपन लाइव बैठे हैं. एक होता है रिकॉर्डेड होता है, जिसमें आपको सेशंस कंप्लीट करना है. तो अब रिकॉर्डेड वाला मैंने लिया. आई ट्राइड गोइंग थ्रू दिस अगेन. डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन होना जरूरी है. अब तो नहीं है यार, अब एक साल पहले था, अब नहीं है. अब ये डिसिप्लिन नहीं बना, तो आई टुक फॉर दिस. अब ये इन्होंने डिसिप्लिन बनवाया. इन्होंने बोला ठीक है 4 घंटे हम पढ़ाएंगे और तुझे ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है. एनीवेज, वेरी नाइस.
ठीक है, देखो देखो क्या टारगेट था हमारा, हम डीएसए से वेब डेव जाएंगे, करेक्ट, या एंड्रॉइड जाएंगे या व्हाटएवर जाएंगे। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग डीएसए, आई लव डीएसए। इतना मजा आने लग गया कि मैं कभी डीएसए से यहाँ गया नहीं, जो कि अब मेरे को कंपनी में जाने के बाद प्रॉब्लम होती है। आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम डूइंग ऑल ऑफ दिस, तो आई टेल यू कि इससे कैसे बच सकते हैं, कि व्हाट कितना टाइम लोगों को डीएसए को देना चाहिए, कितना टाइम लोगों को वेब डेव को देना चाहिए। बट एनीवेज आई स्टार्टेड डूइंग डीएसए, दिस वाज इन अराउंड आई थिंक जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब आई स्टार्टेड डूइंग डीएसए प्रॉपर्ली। आई वाज इन माय थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, आई गेस फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो डीएसए स्टार्ट किया और इतना मजा आया। आई स्टार्टेड गीक्स फॉर गीक्स, एंड गीक्स फॉर गीक्स में देयर वाज दिस थिंग कि आपको ना एक कॉलेज रैंक करके होता है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? कॉलेज रैंक करके होता है कि इफ यू हैव सॉल्व्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं, मीडियम के 4 और हार्ड के 8 मार्क्स होते हैं। एंड इफ यू सॉल्व वन इजी क्वेश्चन यू गेट 2 मार्क्स, और इफ यू सॉल्व इजी मीडियम तो 4 और 8। and if you have more ज्यादा स्कोर then you will have a lesser college rank। तो मैंने देखा कि माई कॉलेज रैंक इज, मतलब मेट्स उस टाइम नहीं हो रही थी इतनी कोडिंग, तो आई थिंक माई कॉलेज रैंक वाज अराउंड 300। आई डिसाइडेड ऑन अ नंबर दैट आई वांट माई कॉलेज रैंक टू बी लेस देन 10। So I started solving questions. This is very wrong. हमको ऐसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ रैंक, और कि मैंने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये सुना है ना कि यार हमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी रॉन्ग यार। तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है 400 क्वेश्चन में, और इट इज पॉसिबल 1000 क्वेश्चन में कुछ ना हो। तो क्वांटिटी, मतलब हम टॉपिक से हट रहे हैं, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, एनीवेज, बट दिस वाज माय टारगेट विच, हम ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन ही ना करो, तुम 10 क्वेश्चन ही ढूंढ लो, ऐसा नहीं। क्वेश्चंस करो ऑब्वियसली, बट ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ करेंगे बात, नो वरीज हरप्रीत, मैं बताऊंगा कि व्हाट हाउ टू डिसाइड योर क्वालिटी, कि कौन सा क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी वाला है। वी कैन टॉक अबाउट दिस। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स क्या, अब ना उस टाइम लीड कोड ना बहुत वो था कि यार लीड कोड पे ना जाने से पहले ना तुमको बहुत कुछ आना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ फंक्शंस होते हैं वहां पे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लीड कोड सुना है? ठीक है, तो लीड कोड पे जाने से पहले तुमको बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा आना चाहिए। तो आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ लीड कोड इनिशियली, बट मैंने स्टार्ट किया। मई में कुछ में किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा कि यार ये करके दिखा, तो ऐसा ईगो वाली बात आ गई थी कि ठीक है यार अब तो करना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड लीड कोड। अब लीड कोड स्टार्ट हुआ, लीड कोड आई डिड फॉर 6-7 months, एंड इसमें वी स्टार्टेड डूइंग लीड कोड कॉन्टेस्ट वगैरह भी, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कहीं पे लिख लेते हैं किस चीज के बारे में बात करनी है, कॉन्टेस्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो हमने कॉन्टेस्ट के बारे में बात, कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया, और ना ये लीड कोड कॉन्टेस्ट आर स्टिल वेरी यूजफुल। मैंने अभी रिसेंटली भी कोई देखा था कॉन्टेस्ट, और अभी भी ठीक ठीक कॉन्टेस्ट आ रहे हैं, तो देने चाहिए, करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आई गॉट बोर्ड, और उस टाइम वो भी था यार, अब तो आई एम नॉट श्योर क्या सीन है, बट हमारे टाइम पे इट वाज कि तुमको 5 सितारे चाहिए तुम्हारे कोड शेफ में, तुमको एक्सपर्ट रेटिंग चाहिए तुम्हारे कोड फोर्सेस में, तुमको नाइट या ऐसा कुछ चाहिए तुमको लीड कोड में, वरना तो भाई, वरना फिर ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह छोड़ दो, फैंग के सपने छोड़ दो अगर 5 स्टार नहीं होता। गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। आई एम नॉट 5 स्टार ऑन कोड शिफ्ट, आई एम 4 स्टार। बट दिस वॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने छोड़ा लीड कोड एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग कोड शिफ्ट, कोड फोर्सेस, मतलब कॉन्टेस्ट, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी। एंड इट वॉज वेरी बोरिंग इनिशियली। फन सिर्फ कॉन्टेस्ट में आता था, बाकी टाइम प्रैक्टिस करने में बहुत बोरिंग लगता था कि यार क्या है यार, ये कैसे सवाल, मैथ्स क्यों करा रहे हो हमसे, हो गया डीएसए करा लो, मैथ्स क्यों करा रहे हो। बट ठीक है, इसका भी एक तरीका है, इफ यू वांट टू गेट बेटर एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो कर सकते हो। बट ठीक है, आई केप्ट रिलेक्टेंट, क्योंकि हमें पता था कि देखो फर्स्ट सेकेंड ईयर कॉलेज तो नहीं है हमारा, थर्ड ईयर कॉलेज है, अगर रिज्यूमे सेलेक्ट कराना है तो बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए, तो कुछ तो चाहिए इसमें से, इधर गेट 5 स्टार, इधर गेट एक्सपर्ट। तो आई स्पेंट 4-5 months अराउंड की कोर्स से फोर्थ फोर्सेस पे, एंड देन वी गॉट दिस रेटिंग। इस टाइम तक आई हैव स्टार्टेड टीचिंग एज वेल, बट दिस इज द टाइम ऑफ दिसंबर की कुछ की बात है ना, वी आई स्टार्टेड इन मार्च में आया था ना कोविड, and till December I started doing competitive programming. And at that time
मेरे को किसी ने बोला, ऑब्वियसली सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया मैंने, और मेरे को किसी ने बोला कि इफ यू वांट टू बी गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, आप टीए बन जाओ। टीए यूज टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड जो भी तुम्हारे क्लास के बीच में डाउट आते थे, तुम्हारे कोडिंग में, कोड में तुम्हारा कुछ खराब पड़ा हो तो डीबग कर दो। ये सब मेरे को ऑफर हुआ था अराउंड दिसंबर ही, जब मैंने कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया था। उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा डीएसए हो गया। हाँ देखो, अब कहाँ पे थे हम कि हमें डीएसए से वेब डेव जाना था, बट डीएसए ही पूरा नहीं हुआ, डीएसए में ही मजा आ रहा है। ठीक है, वेब डेव गए ही नहीं। उन लोगों ने बोला देख वेब डेव तो इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू शुड डू इज कि तुम टीए बन जाओ, तो हमारा डीएसए के डाउट्स वाउट्स ले लेना बच्चों के, हम तुमको वेब डेव फ्री में पढ़ा देंगे। तो मतलब ठीक है, गुड टू डू, कर लेते हैं, वेब डेव तो मिल रहा है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि 4 घंटे टीए किया और फिर 3-4 घंटे वेब डेव किया, ये वाला काम हो जाता था। दिस वेंट आउट फॉर 5-6 months। देन अब देयर इज दिस, अब फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया, आई हैव फ्रेंड्स इन एनएसआईडी डीटीयू, वो लोग बहुत टेंशन में है क्योंकि उनका पहले 1-2 महीने में ही गूगल वगैरह आ जाती है, वो स्टार्ट करके लेके चली जाती है। अब 1-2 महीने वो बहुत टेंशन में, हम लोग बहुत चिल हैं कि यार ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है फोर्थ ईयर, कर लेंगे, है अभी 1 साल, देखेंगे प्लेसमेंट। अब ऑफ ऑफ कैंपस ही लेना है, ऑन कैंपस तो कुछ आता नहीं। तो one day I'm just sitting somewhere and my mentor from this web coding called me and said placement हो गया। I said नहीं, प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, अब इन्होंने पूछा है प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब अभी मेरे को रेफरल देंगे, 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू आएंगे। ही सेड कि ठीक है प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, एक काम कर, कल ऑफिस आ जा, मतलब वेब कोडिंग आ जा। मतलब क्यों? कह रहे टीचिंग का रोल देंगे तेरे को। मैं कह रहा नहीं नहीं, टीचर थोड़ी करना है। नहीं, रेफरल वेफरल देते, ये मेंटर वेंटर नहीं बनना है मेरे को। कह रहे नहीं तो एक बार आ जा। मैं फिर घर पे भी बोला, तो दे सेड कि ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई, एक बार इंटरव्यू दे के आ जाते हैं और फिर देखते हैं। तो बीवर ऐसा 6-7 स्टूडेंट्स ही थे उस टाइम पे, टीएज थे, जिनको देवर ट्राइंग टू गिव जॉब। और फिर हमारा 3-4 राउंड इंटरव्यू हुआ। एंड बट लेटर ऑन जब वेब कोडिंग के जो सीईओ थे सुमित सर, उनका जब मैंने विजन सुना कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं एंड ऑल, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई स्टार्टेड कि ठीक है, लेट्स डू दिस, लेट्स ज्वाइन वेब कोडिंग। और वेब कोडिंग, देखो, I'll be completely honest with you guys. In third year, I was in first year. This is true. In first year, क्या बोला था मैंने? 1 करोड़, राइट? 1 करोड़ की सैलरी लेंगे। इन सेकेंड ईयर, दिस वाज कि ठीक है यार, 1 करोड़ इज बहुत ज्यादा, ये इंडिया में तो नहीं मिल रहा, लेट्स टारगेट फॉर 12 lakhs, मतलब 12 LPA लग जाए। इन थर्ड ईयर आई लाइक कि यार महीने के ना 40-50 हज़ार रुपए भी कम नहीं होता है। ठीक है, चल जाएगा अपना काम, लेट्स स्टार्ट फॉर 5-6 LPA शायद। ठीक है, बढ़िया सैलरी है। एंड फोर्थ ईयर दिस वाज वेब कोडिंग। हाँ, तो टीए के अपने को कुछ अराउंड 12K पर मंथ मिलता था, तो ऐसा कुछ 12,000 पर मंथ मिलता था टीए करने के लिए। तो वो था, और मतलब इसके बाद वेब डेव वाला जो फ्री था, इसके बाद देखो मस्त हैंग हो गया। एनीवेज, ठीक है, तो ऐसे ही बता देते हैं। फोर्थ ईयर में I got this job. It was fairly around 8-9 कुछ था, 8-9 LPA कुछ था, and I was very intrigued कि मेरे को मजा आ रहा था, तो पढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। बट so this is June July and around October November I had filled ऐसा 7 to 8 फॉर्म्स ऑफ Amazon, 7-8 फॉर्म भरे हैं, किसी का रिप्लाई नहीं आया। इवेंचुअली एक का रिप्लाई आया एंड इंटरव्यू हुआ। एंड आई थिंक दैट इंटरव्यू बहुत बहुत आसान इंटरव्यू था। Amazon का इंटर्न का बहुत आसान इंटरव्यू होता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड देन फिर वो सिलेक्ट हो गया। फिर जनवरी में आई वाज इन डिलेमा कि हाँ, जनवरी में द इंटरव्यू फ्रॉम अटलासियन एज वेल, कि अटलासियन का इंटरव्यू होना था। एंड करेंगे एक बार, इसके बाद एक बार ये चले तो अटलासियन इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि अटलासियन का इंटरव्यू प्रोसेस क्या था। कि अपने को एक दिन में कुछ 2-3 इंटरव्यूज होते हैं एंड वो एक टेस्ट होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, एक बार कर लेंगे बात। तो फिर अराउंड जनवरी में आई हैड ऑफर फ्रॉम Amazon इंटर्न का, आई हैड ऑफर फ्रॉम अटलासियन, और पेप का भी ऑफर था फुल टाइम का। एंड बस ये 2-3 थे और 2-3 इंटरव्यूज चल रहे थे।
तो आई हैड इन जनवरी लास्ट ईयर, मतलब जो भी मेरा 4th ईयर था, आई हैड आई हैड इट ऑल सॉर्टेड आउट कि ठीक है ये चीजें हैं. then I obviously I wanted to join Amazon, देखना था कैसा वर्क कल्चर एंड ऑल, एंड आई started teaching as well. मतलब वेब कोडिंग वाज अ फुल टाइम जॉब. एंड फिर दिन फिर अपन धीरे धीरे दोनों काम कर रहे हैं, मतलब दिन में Amazon एंड रात में मैं पढ़ा रहा था, बिकॉज देयर वाज दिस बैच जो बीच में रह गया था और वो मेरे को कंप्लीट करना था. तो ऐसे बीच में स्टूडेंट्स को छोड़ना अच्छा ऐसा नहीं लगता, वो फिर अजीब से हो जाते हैं. तो वो खत्म किया हमने, एंड उसके बाद आई ऑब्वियसली joined other institutes as well जब मैंने left web coding. And yep, it's been a 1 year at Atlassian. बहुत बढ़िया. It's a good company to work at. I sometimes feel lucky, and then I know कि ठीक है, I think I have put 4 to 5 hours every day in DSA. वेब डेव मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, इंटरव्यू पास करने लायक कर लिया था कि इफ समवन इज आस्किंग मी समथिंग तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, या कैसे कि कैसे किसी भी ब्राउजर पे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे थोड़ा सा फ्रेमवर्क भी सीख लिया तो कैसे चीज़ें चलती हैं, ये सब था. राइट. ठीक है, 1 मिनट के लिए. अब लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. हाँ. हाँ हाँ, एक बार. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आई कैन सी इन द चार्ट. हमको दो तीन चीजें देखनी थी ना यार, ये अटक गया यार, मेरा सॉफ्टवेयर अटक गया जिसपे मैं लिख रहा था. एनीवेज. Yeah, sir, they are asking in the chat box regarding the offer, how to get selected as an SDE at Atlassian and the process. हाँ हाँ, इसी के बारे में. आई जस्ट नीड माई पेन, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. Mhm. एंड अपने बिल्कुल गॉट योर क्वेश्चन गॉरंज. एक बार बताता हूँ मैं आपको. ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़ो यार, ये नहीं चल रहा तो मैं एक बार देख लेता हूँ. देखो, Atlassian was a pool drive. So we had students बहुत सारी जगह से, and there was, so in any drive, what you get is, even if you are talking about Microsoft or any other company, what we do is they will give you a link, a test link, जहाँ पे everyone is allowed to take that test. It's not कि तुम्हारा ब्रांच, एटलीस्ट इन आवर कॉलेज दिस वाज नॉट द सिनेरियो कि आपका ब्रांच क्या है या CGPA क्या है. That was not the scenario. Everyone was allowed to give the test, even if you are from Triple E or even if you are from CSC, IT वगैरह वगैरह. ठीक है. तो what was started, तो वो टेस्ट was on some day, and वो टेस्ट का तुमको 12 घंटे का you have a window that you can attempt that test anywhere. अब वो टेस्ट देने के बाद you have a interview process. So what you need to do is, so there were 3 questions. One was on HashMap, one was, other two I don't remember, but they were kind of medium hard, not or easy medium hard, not actually completely hard. Normal questions थे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं थे. And after we gave that test, there was a interview call. So I think for that interview call 40 students were selected कि जिसमें से you will give इन सबको interview के लिए बुलाया गया था. So my interview, I think for any SD1 or a fresher, if you want to join as fresher, the process is very simple. You will have 3 rounds. First round is completely DSA based. ठीक है. DSA based हमारा round होगा, and they ask a pretty good question there. So you should be very focused or very determined for that. तो एक मिनट. हाँ, तो पहले वाले राउंड में what they ask is, the major questions are from graph trees वगैरह वगैरह. So advanced DSA they ask, and उसमें what do they do is you will have 45 minutes, so 3 rounds, right? So 3 rounds. First round is obviously DSA, and this is, they will ask you a hard problem or at least a medium hard problem.
So you need to be very sharp at this point, and you should be able to code 2-3 ways कि ठीक है इसका better तरीका क्या हो सकता है, right? इसका follow up questions they can ask, ठीक है, they can ask a follow up कि अगर हम इसमें constraints increase कर दें या जो भी, ठीक है. तो this is the first round. After this first round I was then you will have to wait for 2-3 hours, okay. In our scenario I waited for around 45 minutes, 50 minutes. Then the call for second round was there and some students were eliminated here as well. उसके बाद the second round is system design. Hear me out. So system design बस नाम का है. If you are a fresher, nobody will ask you system design. So system design is कि how you design a system कि तुम्हारे पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही बनाना है, तो तुम कहाँ से इनपुट लाओगे, कहाँ आउटपुट लेके जाओगे, what software you will use, how will you scale it and all. But the interviewer told me कि देखो you are a fresher, so system design तो तुमको नहीं आता. I said yes. So what we are going to do is we will be asking you dev related questions, so development related questions, whatever projects you make, whatever development you have done in your college or internship, the questions will be around that. And they obviously gave me a question. The question was if you will ask me बता दूंगा, but question was color picker. Google करके देखना, ठीक है. So this was the question इस वाले राउंड में. और इस वाले राउंड में था क्या कि they started asking me questions कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसके बाद तुमने, तो I gave them कि ठीक है हम ऐसे करके बना देंगे and all that. उसमें they started grilling कि ठीक है अब ऐसे करोगे तो फिर what should be the, मतलब everything was covered here. Oops was covered here, JavaScript was covered here, how will you host this website, how will you manage your data, ठीक है. तो everything was covered here. If you want to go past this system design वाला round, what I will suggest is कि something भट्टाचार्य करके कोई channel है on YouTube, just do that, very important. बढ़िया से 6-7 घंटे का कोर्स है, आराम से हो जाएगा. and also do some oops और whatever projects you have made, जो भी projects बनाए हैं, चाहे अच्छा ही हो चाहे खराब ही हो, but you should be एकदम उसके आर पार, you should know कि ठीक है यार, if they are asking कि ये लाइन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए ये कैसे काम कर रहा है बिहाइंड द सीन, वो पता होना चाहिए. दे विल ग्रिल यू बहुत अच्छे से, दे विल ग्रिल यू, दे विल टेस्ट योर इनर नॉलेज कि ठीक है ऊपर से तो तुमको पता है क्या होता है, क्या तुम्हें पीछे की चीजें पता है. तो दिस इज योर सिस्टम डिजाइन वाला राउंड. एंड थर्ड राउंड इज HR राउंड. Some students were eliminated in system design as well and some students were eliminated in HR as well. तो HR के लिए भी you need to prepare. ऐसा छोड़ मत देना कि ठीक है HR ही तो है. You need to prepare. There is a STAR technique, STAR, ठीक है. STAR technique पढ़ना क्या होता है if you want to go past HRA वाला राउंड, कि STAR technique क्या होता है. उसके बाद जो भी प्रॉब्लम तुमको दी जाएगी कि तुमको ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं कि तुम्हारी मैनेजर से लड़ाई होगी तो तुम क्या करोगे, यही सब क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं. बट यू नीड टू गिव योर आंसर्स वेरी एफिशिएंटली कि ठीक है यार हम ऐसे करेंगे, दिस वाज द सिनेरियो. तो जस्ट रीड अबाउट स्टार टेक्निक एंड यू विल बी एबल टू गो पास HR वाला राउंड. उसके बाद आई थिंक दैट सेम डे ऑफर आ गया था. हाँ शाम तक ऑफर आ गया. तो दीज आर द 3 राउंड्स फॉर फ्रेशर. फॉर एक्सपीरियंस अलग प्रोसेस होता है, उसमें 3 नहीं 5-6 राउंड होते हैं. So but we are not concerned about that at that moment. Okay, now sir, I have a question. Uh-huh. Ki, like you have been like mentoring a lot of students over DSA. So where do you think कि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं? Like is it कि वो DSA कर रहे हैं, then they're not revising it again and again? Yeah, you know what they do DSA, but they don't practice after that. या फिर you know what are the mistakes that they are doing? You think? हाँ देखो, we were talking about quality quantity वाली बात है ना, कि quality is way much important than quantity. कि अब I have seen this a lot कि बच्चे क्या कर रहे हैं, they are doing 1000 question, but वो 1000 question कैसे help कर रहे हैं, they are not thinking about it. अब देखो, अब लीड कोड पे if you will go, तो लीड कोड पे चले क्या, लीड कोड पे अगर आप जाते हो तो you see a like dislike वाला ऑप्शन देखा है क्या. क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है हमारे पास, हर एक प्रॉब्लम है, इवन कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे पास, आप देखोगे कि दिस मैनी पीपल हैव लाइक दिस क्वेश्चन एंड दिस मैनी पीपल हैव डिसलाइक दिस क्वेश्चन, है ना, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन. सो व्हाट डू यू सी,
that ये जो क्वेश्चन है यूनिक BST2, 6,800 people have liked this question and 440 have disliked this question. ठीक है, obviously कुछ तो रीजन होगा, राइट? अब रेदर देन सॉल्विंग दिस, इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिसलाइक्स हैं और लाइक्स बहुत कम है, तो इस लाइक्स डिसलाइक का क्या मतलब है? इन ज्यादा लाइक्स का मतलब है कि इन लोगों को इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला, राइट? इन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इन लोगों को कुछ इनसाइट मिला, सॉल्व हुआ नहीं हुआ दैट इज नॉट द इशू हियर, उनको कुछ तो सीखने को मिला, उनको लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपना दिमाग चला, ठीक है? तो रेदर देन सॉल्विंग कुछ भी क्वेश्चन कि ठीक है भाई ये कर लिया, नहीं, सॉल्व बेटर क्वेश्चंस, दिस इज फर्स्ट, ठीक है? क्वांटिटी पे ध्यान ना देके क्वालिटी पे ध्यान दो, देयर आर शीट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, स्ट्राइवर की शीट है, इसकी शीट है, बहुत सारी शीट्स पड़ी हैं एंड दे हैव गुड क्वेश्चंस इन देयर। किसी ने थोड़ा सा भी अगर 1 2 3 घंटे भी लगाए हैं शीट बनाने के लिए तो वो ठीक ही क्वेश्चंस डाले होंगे, ठीक है? तो शीट वीट आई से कि एक बार लाइक्स डिसलाइक्स देख लेना, ठीक है? दोनों क्या है यार अर्श? तो फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकंड थिंग इज कि जो आपने रिवीजन वाली बात बोली कि रिवीजन इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज लेट्स टॉक अबाउट ट्रीज ओनली, कि आज हमने ट्रीज पढ़ा, ठीक है? हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, जो भी इशूज था हमने, जेनरिक ट्री, बाइनरी ट्री, BST सब वर्क पढ़ लिया। अब 1 महीने बाद हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, हमने स्टैक पढ़ना शुरू किया। अब 15 20 दिन हो गए हैं, हम लोग ट्रीज भूल चुके हैं। अब फिर से गलत हो गया, अब हमें ट्रीज तो भूल गए हम, तो क्या करें? तो देखो, यू शुड रिवाइज एवरीथिंग आफ्टर 7 days। 7 दिन के बाद हम भूलने लग जाते हैं। अगर हमने आज यही, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली, कि हमने आज यही सवाल पढ़ा, हमने पढ़ा कि यूनिक बाइनरी सर्च 2 कैसे करना है, BST2 कैसे करना है, अब हम ना 7 दिन बाद ये भूल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ठीक है यार भूल गए तो क्या वापस जाके करेंगे, तो रट्टा मारना हो गया। रट्टा थोड़ी मारना चाहिए, ये DSA आपको तो इंट्यूशन करना है, आपको रट्टा तो नहीं मारना। तो नहीं, देखो, यू शुड रिवाइज इन अ पर्टिकुलर वे। व्हाट यू शुड डू इज कि आज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है? अब आप 7 दिन बाद भूल जाओगे, क्या करो? 7 दिन पीछे की चीजें जाके पढ़ो। आपने 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 7 दिन पहले, है ना? आप 5 क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो। अब आप देखो कि ये आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यार मैं इसका कोड लिख दूंगा, मेरे को आगे पीछे का सब कुछ पता है कैसे करना है, तो छोड़ दो, स्किप दैट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। हाँ, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि हाउ यू कैन रिवाइज इट। तो हम 7 दिन में भूल जाओगे चीजें। अब व्हाट यू नीड टू डू इज कि आज आपने 7 दिन पहले आपने 5 6 क्वेश्चंस पढ़े, क्या करो? 5 दिन पीछे, मतलब 7 दिन पीछे के सारे क्वेश्चंस उठाओ। अब यू विल रीड द स्टेटमेंट, यू विल नहीं कि यार ये तो मेरे को बहुत सही से ध्यान है, मैंने बहुत टाइम लगाया था इसमें, ट्राई रन किया था एंड ऑल, मैं इसको कोड करके टाइम वेस्ट दोबारा नहीं करता, मुझे सब पता है, इसका ट्राई रन आता है मेरे को, छोड़ दो, स्किप दैट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। अब तुमको लग रहा है कि यार आई थिंक मेरे को अप्रोच याद है, पर शायद कोड में कहीं फंस जाऊं, कोड लिखो, सॉल्व हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर करो सॉल्व। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, तो वॉच द वीडियो या जो भी, पूरा शुरू से अंत तक करो। ऐसे क्या? अब व्हाट यू नीड टू डू इज, छोड़ दो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 7 दिन बाद भी फिर से इस पे आओ, कम बैक टू दीज क्वेश्चंस आफ्टर 14 days, 14 दिन बाद आओ, या वट एवर यू थिंक इज कि इस नंबर के बाद आई स्टार्ट लूजिंग कंसेप्ट, मैं भूलने लग जाता हूँ, उसके बाद आओ। अब वही सेम प्रोसेस, लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, कोड कर देंगे, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लग रहा है कि नहीं करना पड़ेगा तो करो, नोट्स बना लो कि यार ठीक है मैं अब की बार भूला था, मैं ये चीज भूल गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड देन लेटर ऑन, मतलब ये प्रोसेस करते रहो कि अब 14 दिन बाद आए हो, अब 28 दिन बाद आना, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप रिवाइजिंग थिंग्स, कीप मेक अ नोट, मतलब कुछ भी बना लो, हर चीज के लिए नोट्स बना लो कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है। तो व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ रेपो, एक रेपोजिटरी बनाई, उसमें मैंने क्वेश्चंस डाल दिए कि ये अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस है, अगर मेरे को एक दिन पहले देखने हैं, अगर मेरे को कोई आज आके बोलता है कल तेरा इंटरव्यू है, तो मेरे को एक दिन पहले देखना है, तो मैं ये क्वेश्चंस देख लूंगा। तो एक रेपोजिटरी बना लो, सही रहेगा, नोटबुक खो जाएगी इधर उधर, गिट पे डालोगे नहीं खोएगा। बिल्कुल देखो यार अर्श, बिल्कुल सॉल्यूशन देखो, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब तुमने पहले किया हुआ है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि तुम वापस जाओगे भूल जाओगे, कंसेप्ट भूल गए हो तुम, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं भूले हो, ठीक है? हाँ यार पब्लिक है, वो रेपो पब्लिक है, इफ यू विल गो टू माय गिट, ऐसे सम्राट भारद्वाज गिटहब टाइप करना तो दिख जाएगा, पब्लिक रेपो है वो, ऐसा प्राइवेट नहीं है, तो दिख जाएगी। तो हाँ, आई वो क्या आंसर कर रहा था मैं, अरे देखना होता है बिल्कुल, सॉल्यूशंस अगर आपको देखने होते हैं तो आप देखो, इट्स नॉट नेसेसरी आप कंसेप्ट भूले हो, आप क्वेश्चन तो कोई
ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे इंटरव्यू में, उस टाइप का पूछ लेगा। डीपी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सपोज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंट है, तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जैक्टली एलआईएस नहीं पूछ लेगा कोई। ठीक है, ठीक है। आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, मैक, राइट? That's ओके perfect, sir. ऑलराइट भैया। सो फिर डेवलपमेंट एंड डीएसए के बीच में कोई बैलेंस स्ट्राइक करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, एंड डिफरेंस क्या रह जाता है दोनों के बीच? ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखो, this is true कि whenever you want to learn any development, whether it is web dev, Android, data science, machine learning, जो भी है, थोड़ा सा DSA you should know, थोड़ा सा ही। I'm not saying कि जाओ ग्राफ तक पढ़ के आ जाओ, at least you should know what arrays are, what stacks are, what queues are, अब कैसे डेटा आता है, कैसे बाहर जाता है, in any language, not sure तुमको जावा यूज करना जावा यूज करो, तुमको C++ यूज करना C++ यूज करो, बट थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा इनिशियल का पढ़ लो कि ठीक है इफ एल्स क्या होता है ना, फोर लूप क्या होता है, ये सब इनिशियल का पढ़ लो। अब उसके बाद तुम्हारी मर्जी है व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। इफ यू आर सेइंग कि ठीक है यार मैं एक बार डेव कर लेता हूँ, अच्छा अब इट डिपेंड्स कि किस टाइप की कंपनीज तुमको टारगेट करनी है या किस स्टेज पे हो। इफ यू आर इन योर फोर्थ ईयर, अब तुमने शुरू नहीं किया है, तो आई वोंट सजेस्ट कि ज्यादा स्पेंड करना टाइम डीएसए के ऊपर। यू शुड स्पेंड मच टाइम ऑन डेवलपमेंट, टारगेट फॉर कंपनीज जो तुम्हारे डेवलपमेंट को उठा के स्टार्टअप्स वगैरह है ना, किसी तरह घुस जाओ इंडस्ट्री में, फिर डीएसए करके निकल जाना। अब अगर तुम फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो, तुम्हारा बहुत टाइम, बहुत ज्यादा ही टाइम, तो तुमको क्या करना है, स्टार्ट विद डीएसए करो, गिव इट प्रॉपर 5-6 मंथ्स, अच्छे से करो। डीएसए किया मतलब कहाँ तक करो, तुम अपना ग्राफ ट्रीज डीपी वगैरह सब कुछ कवर करो एक बार अच्छे से। आई एम नॉट सेइंग एडवांस लेवल चले जाओ, नॉर्मल तुमको पता है कि ठीक है ये ग्राफ होता है, ये डीपी होता है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद अब तुम एक्सप्लोर करो थोड़ा सा डेवलपमेंट, एंड तुमको अच्छा लग रहा है डेवलपमेंट, ठीक है 2-3 महीने डेवलपमेंट करा, प्लीज कीप रिवाइजिंग डीएसए। वो बहुत जल्दी, 1 महीना लगता है डीएसए भूलने में, कंप्लीटली भूलने में, एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा फिर। तो प्लीज कीप रिवाइजिंग डीएसए इस बीच, और स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डेव। 2-3 महीने डेव एक्सप्लोर किया, अब इट्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। इफ यू वांट टू डू डीएसए आगे से करना है, डीएसए करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर करो। आई ऑलवेज सजेस्ट दिस टू एवरीवन कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तभी करना अगर तुमको मजा आता है, जबरदस्ती मत करना, नहीं होगी, या जबरदस्ती करोगे हो जाएगी, फिर बोरिंग सा लगेगा कि ठीक है क्या कर रहे हो। जबरदस्ती मत करना, जरूरी नहीं होता है। सब बोलेंगे यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लो, एक बार तुम 5 सितारे बन गए, 5 स्टार आ गया तुम्हारे पास, तो तुमको कंपनी क्रैक हो जाएगी, विच इज ट्रू कि 5 स्टार बन जाने के बाद यू लर्न अ लॉट। बट फिर हम ना दूसरे रास्ते से भी चलना शुरू करते हैं कि हम आंसर्स खरीदना शुरू कर देते हैं, हम चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट एफिशिएंट। कि क्यों क्यों कर रहे हो? अगर मजा आ रहा है तो करना, वरना लीड कोड इज बहुत ज्यादा इनफ, बहुत ज्यादा इनफ। ठीक है, ठीक है। अब डेव और डीएसए की हम बात कर रहे थे, डेव और डीएसए इज इक्वली इंपॉर्टेंट। डीएसए करो, और डेव के भी प्रोजेक्ट्स जब बना रहे हो ना, तो ट्राई टू मेक योर ओन प्रोजेक्ट्स। मोस्टली हम डेमोज बना देते हैं, मैंने भी डेमोज ही बनाए थे कि हमने डेमो कह रहा हूँ, क्लोन्स बना देते हैं हमने, कि इस ऐप का क्लोन बना दिया, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया, वगैरह वगैरह। बट जो भी करना, यू शुड बी वेल थ्रू दैट। ठीक है, मेरे को यहाँ से लेके एंड तक सब कुछ आता है। मेरे को, अगर हम रिएक्ट फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमको सब कुछ आता है कि कैसे इनपुट है, कैसे आउटपुट है। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, डेव के बारे में बात करें तो तुमको जावास्क्रिप्ट वगैरह या जो भी तुम कर रहे हो तुमको आना चाहिए। तुमको एक प्रोजेक्ट तक बहुत सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। इतना डेव काफी होता है किसी भी कंपनी में घुसने के लिए और अंदर सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सरवाइव करने के लिए दे गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम, तो अंदर जाके तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। क्या पता तुमने एंड्रॉइड किया और अंदर जाके तुमको कुछ और काम मिल गया, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वही काम मिलेगा डेव का। ठीक है, डीएसए इफ यू आर इन फर्स्ट सेकेंड ईयर तो बहुत सारा करो, एडवांस लेवल तक जाओ, कॉन्टेस्ट दो, जो करना है करो। यू शुड बी एकदम टॉप लेवल के कोडर होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अटलासियन वगैरह वगैरह वगैरह। तुमको कोई ला के दे रहा है तो तुम करके दे रहे हो उसको क्वेश्चन, 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी हर बार, बट 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स तुम करके दे रहे हो, इतना प्रो तुमको हो जाना है। ठीक है, अब अगर बस तुम्हारे पास कम टाइम है तो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करो, डीएसए पे थोड़ा कम करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो दिस इज इट, टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है तो करो, थर्ड ईयर में हो तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था, तो थर्ड ईयर पे बहुत टाइम है। फोर्थ ईयर में हो तो थोड़ा डेव पे ज्यादा ध्यान दे दो। ठीक है,
ओके And sir, apart from this, DSA भी like काफी लोग अलग languages में like कोई C++, then कोई like some are comfortable with Java, कुछ Python, तो prefer कौन सा करना चाहिए कि DSA किस language में करनी चाहिए? Does not matter, but I will suggest. I started DSA in C++, कुछ समझ में नहीं आया. Then I started in Java, and then later on, जब मैंने Java में almost सब पूरा कर लिया था, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जावा इज थोड़ा सा स्लोअर लेंदी, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है तुमको, उसमें 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ऑल दैट. तो आई जंप बैक टू C++ क्योंकि थोड़ा कम लिखना पड़ता है, एंड इट टुक मी अराउंड अ वीक टू लर्न C++. तो इतना सा ही टाइम लगता है. तो इट डज नॉट मैटर किस लैंग्वेज में स्टार्ट कर रहे हो. आई वोंट सजेस्ट पाइथन में करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें वेल पहले से डिफाइंड होती है. जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कुछ ऐसा लैंग्वेज चूज करना जिसमें तुमको खुद से कुछ मेहनत करनी पड़े. अब ये है कि फॉर लूप लिखना, आई थिंक प्रॉबेबली पाइथन, आई डोंट नो पाइथन, बट प्रॉबेबली पाइथन में बहुत इजी होगा रेदर देन जावा. तो कुछ ऐसा करना जिसमें तुमको खुद से ज्यादा लिखना पड़े, ताकि तुम्हें खुद से ज्यादा तुम्हारा कोड फंस जाए. जितनी बार कोड फंसेगा उतनी बार डीबग करोगे, जितनी बार डीबग करोगे उतना यू विल गेट टू लर्न अ लॉट. आई विल सजेस्ट जावा C++ वर्क्स, जिससे भी करना है कर लो. इवन इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम पाइथन कर लो, डज नॉट मैटर. डीएसए किसी भी लैंग्वेज में बस कर लो. इवेंचुअली इफ यू वांट टू चेंज योर लैंग्वेज तो एक हफ्ता लगेगा, बस एक हफ्ता लगेगा, यू कैन चेंज योर लैंग्वेज. And like which all platforms would you suggest, like resources या कोई YouTube channel जो आप suggest करोगे? हाँ, देखो, इनिशियली आई वोंट सजेस्ट कि लीड कोड जाना. इनिशियली इट्स थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब अभी तुमको फॉर लूप नहीं आता, तुम लीड कोड चले जाओगे तो फिर तुम्हें फंक्शंस नहीं आते, तुम लीड कोड चले जाओगे तो फंस जाओगे. व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि इनिशियली तुम गीक्स फॉर गीक्स से शुरू करो, बहुत सही वेबसाइट है. GFG से स्टार्ट करो. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज कि फिल्टर आउट क्वेश्चंस. कि अगर इफ यू लर्न एरे टुडे, तो प्रॉब्लम्स पे जाना, टाइप करना कि एरे के प्रॉब्लम्स दिखाओ, एंड स्टार्ट सॉल्विंग मीडियम क्वेश्चन, सॉरी इजी क्वेश्चंस. इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना. हो रहे हैं तो जंप टू मीडियम, मीडियम क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो जंप टू हार्ड. बट अगर ऐसा हुआ कि यू स्टार्टेड सॉल्विंग इजी क्वेश्चंस, बहुत आराम से हो रहे हैं, जंप टू मीडियम. अब मीडियम नहीं हो रहे हैं, जंप बैक टू इजी, और इजी क्वेश्चन सॉल्व करें 5-10 क्वेश्चन, देन जंप टू मीडियम. तो when once you are well versed कि ठीक है ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, हो गया, काफी चीजें पढ़ ली हमने, geeks for geeks से उठ के you guys can go to lead code. Lead code is have, I don't know, around 23-2400 questions and बहुत सही क्वेश्चंस हैं. तो उसके जो इनिशियल 1300-1400-1500 क्वेश्चंस हैं वो बहुत बढ़िया हैं, उनको करो सॉल्व. मैंने ये नहीं कह रहा कि 1400 क्वेश्चन सॉल्व करो. देखो, दिस इज कमिंग, आई हैव सॉल्व 1300 questions on lead code, and I am saying कि quantity does not matter at all. You guys can solve 400. I have seen people जिन्होंने 400 questions solve करे and they are in Microsoft. तो go to lead code, बहुत सही वेबसाइट है. They have all the questions, जो भी मोस्टली क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोडिंग निंजा चले जाओ या जो भी प्लेटफॉर्म है, ये सारे क्वेश्चंस इज अ कॉपी ऑफ लीड कोड. तो दिस इज द प्रॉपर वेबसाइट. आई स्पेंड बहुत सारा टाइम ऑन लीड कोड, वही है. तो गीक्स फॉर गीक्स से स्टार्ट करना, जंप सीधा मत चले जाना लीड कोड पे. पहले गीक्स फॉर गीक्स फिर लीड कोड जाना. उसके बाद इफ यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो कोड फोर्सेस इज द बेस्ट साइट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. और ठीक है. और YouTube कोई ऑप्शन है अच्छा लाइक स्टार्ट करने के लिए? I'll suggest web coding. उनका बेसिक जावा वाला जो कोर्स है इज वेरी गुड, तो स्टार्ट विद दैट. ठीक है. उसके बाद वंस यू आर डन विद, मतलब एक बेसिक वाला जो कोर्स है उसमें 120-100 अराउंड ऐसे कुछ वीडियोस हैं. वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद तुमको खुद नॉलेज हो जाएगा कि तुमको कहाँ जाके करना है. इतना तुमने 120 वीडियोस देख ली कोडिंग रिलेटेड, तो यू विल हैव सजेशंस यूट्यूब पे, वही सारे देखोगे, यू विल सी. अब फॉर डिफरेंट टॉपिक्स ऐसा बोला गया है कि ये वाली चीजें बेस्ट हैं. जैसे फॉर डीपी समवन सेज की, आई डोंट नो द यूट्यूबर नेम्स, बट कोई है कि वो बेस्ट है, बट डज नॉट मैटर. तुमको अगर समझ में आ रहा है, एंड आई विल से कि वेब कोडिंग से समझ में आ जाएगा, वेब कोडिंग का यूट्यूब चैनल है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बढ़िया से पढ़ाया हुआ है. तो एक बार तुम्हें चीजें समझ में आ रही है, बस वहां से करते रहो. ठीक है. ऐसा अगर, हाँ, इट इज पॉसिबल कि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो बस क्वेश्चन लिख दो, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, किसी की भी देख लो, है ना. तुमको बस एक प्रॉपर वही तो चाहिए कि ठीक है इस वे में शुरू करना है, पहले फॉर लूप पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है.
तो बस पाथ ही तो चाहिए, वो पाथ किसी एक भी बंदे का पकड़ लो, आई सजेस्ट वेब कोडिंग, और फिर उस पाथ के में भटक सकते हो कि ठीक है डीपीआर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, किसी और बंदे से पढ़ के देख ले, यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा किसी और, ठीक है अब हो गया डीपी, अब फिर से उसी पाथ पे कि ठीक है अब क्या पढ़ाया जा रहा है, अब इसके बाद ग्राफ पढ़ाया जा रहा है तो ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। तो आई सजेस्ट वेब कोडिंग है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बट स्टार्ट विद वेब कोडिंग। एंड कोई बुक्स इन पर्टिकुलर जो आप रेकमेंड कर सकते हैं? I tried learning DSA from books, but couldn't succeed. There are good books. If you are a reader, तो I'll suggest कि जब dev पढ़ रहे हो ना, तो YouTube से ज़्यादा documentation देखना। कि जैसे for example, अगर if you want to learn React, तो React पे there are बहुत अच्छे courses, but their documentation is the best. बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत बच्चे की तरह समझाया हुआ है, बहुत thoroughly और बहुत प्यार से समझाया हुआ है। डेव के लिए आई सजेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर डीएसए जितना तुम इफ यू आर watching 1 hour of video, then you should be solving 2 to 3 hours of questions on your own. So it's more of your practice. So books ले लो if you want to. I can remember the name, कुछ है एक डीएसए के ऊपर बहुत बढ़िया बुक है, बट फिर तुम बोर हो जाओगे, एज व्हाट आई टोल्ड कि 10-20 बुक पेज पढ़ के बोर हो जाओगे, यूट्यूब वाली जनता की तरफ चले जाओगे। हाँ हाँ यस, कॉर्मन यार बहुत CLRS हो जाएगी, बट आई वोंट सजेस्ट। एंड सर अब मान लो हमने डीएसए कर लिया, हमने डीएसए के बाद डेवलपमेंट भी लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग ईदर ऐप और वेब, दोनों में से कुछ कर लिया, बट नाउ कम्स इंटर्नशिप, वो कब स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से ईयर से अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए? देखो इंटर्नशिप पे ज्यादा एफर्ट्स मत मारना, मतलब ऐसा एफर्ट्स एज इन कि ऑब्वियसली ट्राई करना जितना कर सकते हो, पर ऐसे नहीं कि नहीं हुआ तो मन मार के बैठ मत जाना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। माई प्लान वॉज नेवर डू इंटर्नशिप, आई जस्ट ज्वाइन द जॉब डायरेक्टली, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। वट यू नीड इफ यू आर इन सेकेंड ईयर तो एक बार ट्राई कर लो, 2 month इंटर्नशिप होती है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रही छोड़ दो, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता कि डीएसए क्या होता है। बट अगर कर रहे हो तो बढ़िया, एक बार सेकेंड ईयर में ट्राई करना, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। ये वाला वो वाला टाइम हो जाता है कि तुम ना अपने दोस्तों की तरफ देखते हो और तुम बोलते हो यार इसकी तो इंटर्नशिप लग गई, मेरी नहीं लगी, विच इज बैड, बट दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। गो टू थर्ड ईयर में मस्त पढ़ाई वढ़ाई करो, और फोर्थ ईयर के ना लास्ट सेमेस्टर में कोशिश करना कि मिल जाए, और यहाँ पे अच्छा वाला ट्राई मारना कि यार मेरे को इंटर्नशिप चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जो वो 6 months की विंटर इंटर्नशिप होती है विट इज वेरी एफिशिएंट, तुमको कंपनी में काम आएगी वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग, और पॉसिबल है कि वहां से तुमको पीपीओ भी मिल जाए। तो फोर्थ ईयर में ट्राई फॉर एवरीथिंग, जो भी मिल रहा है सब करो, गेटिंग अ फुल टाइम जॉब एक्सेप्ट कर लो, गेटिंग अ इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर लो, तो सब कुछ फोर्थ ईयर के लिए छोड़ दो, और फोर्थ के भी लास्ट सेमेस्टर के लिए कि ठीक है लास्ट सेमेस्टर में करेंगे, तब तक हाथ पैर मारते रहो कि ठीक है कल से एक बार सेकेंड ईयर में ट्राई कर लेना, थर्ड ईयर में पढ़ाई करना मस्त पूरी, और एक बार फिर फोर्थ ईयर में ट्राई करना। थर्ड ईयर में भी आई थिंक 2 month इंटर्नशिप मिल जाती है तो ले लो, पर वहाँ पे ज्यादा हताश होकर नहीं बैठ जाना, मिल गई तो ठीक है, वरना देयर इज फोर्थ ईयर फॉर यू गाइस। एंड अप्लाई कौन से प्लेटफॉर्म से करना चाहिए मोस्टली? देखो देयर आर प्लेटफॉर्म्स, इंडीड है, naukri.com है, वगैरह वगैरह, बट मेरे को कभी एफिशिएंट नहीं लगे माय थॉट्स। कोशिश तो देखो व्हाट यू शुड डू इज कि अगर तुम लोग 1 घंटा इंस्टाग्राम चला रहे हो तो बंद कर दो, 1 घंटा डीएसए कर लेना, और उस 1 घंटे में से 50 मिनट डीएसए कर लेना, 10 मिनट लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करो आज से। व्हाट यू नीड टू डू इज कि इफ यू आर टारगेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, 10 से 20 लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, 10 में से एक एक्सेप्ट करेगा, मान लेते 10 में से एक एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो तुमने ये कर 10 दिन किया, 100 लोगों को भेज दिया, 100 में से 10 ने एक्सेप्ट कर लिया, अब 10 लोगों को एक किसी दिन रोल निकला, रेफरल की बारी आई, अब उन्होंने 10 लोगों को मैसेज कर दिया कि ठीक है भाई सर आई हैव अचीव्ड दिस 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 दिस, आई हैव डिड दिस दिस दिस, मेरा ये रहा रिज्यूमे, ये रहा जॉब का लिंक, सब कुछ एक ही मैसेज में, सब कुछ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही मैसेज में सब कुछ, उसको मौका नहीं देना है पूछने का कि यार वेयर इज योर रिज्यूमे, तुमने अपना काम कर दिया, अब उसकी मर्जी है। अब उस 10 में से कोई एक बंदा रेफरल देगा, ठीक है, तो दिस ऐसे करके लिंक्डइन बनाना शुरू करो। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने स्किल्स डालो उसके ऊपर, ठीक है, अपना थोड़ा सा अच्छा लिख दो, चैट जीपीटी से पूछ लो, है ना, कुछ अच्छी चीजें लिखो वहाँ पे, बड़ी बढ़िया सा बनाओ वहाँ पे। लिंक्डइन इज वेरी एफिशिएंट इन फाइंडिंग जॉब्स,
स्टार्ट फॉलोइंग पीपल जो जॉब्स और इंटर्नशिप्स के बारे में बताते हैं ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम। मतलब इंस्टाग्राम स्वाइप करना है करो यार, रीलें देखनी है देखो, बट उसमें ऐसे लोगों को ऐड कर लो जो तुमको जॉब, जैसे अर्श गोयल है, ही पोस्ट अ लॉट अबाउट जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स एंड ऑल। तो ऐसे लोगों को फॉलो कर लो जो जिनका जिनका चैनल ही इसलिए चल रहा है बिकॉज दे टॉक अबाउट कि ये ओपनिंग निकली है, ये ओपनिंग निकली है। तो ट्राई फ्रॉम इंडीड नौकरी, बट मेजरली लिंक्डइन से ही मिल रहा होगा चीजें। एंड इंटर्नशाला है प्रेफरेबल? हाँ, यू गाइस कैन ट्राई, पर इंटर्न चला ना थोड़ा बहुत सारा, आई थिंक मेरे टाइम में हो गया था, नॉट श्योर अब क्या सीन है, बट मेरे टाइम में देवर फिल्ड विथ नकली इंटर्नशिप्स। नेवर पे फॉर इंटर्नशिप, फर्स्ट थिंग। नेवर, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में अंतर होता है। अगर तुमको कोई ये बोल के लेके जा रहा है कि इंटर्नशिप करवा रहे हैं पर हम तुमसे 5,000 रुपये महीना लेंगे, दैट्स नॉट इंटर्नशिप, दैट्स ट्रेनिंग। मत करना, वो तुम यूट्यूब पे फ्री से कर लोगे। और ऐसा भी इंटर्नशिप, फ्री का इंटर्नशिप कर लो भैया दीदी के लिए, वो कर लो, वो एफिशिएंट होता है, उससे सीखने को ही मिलेगा। बट इवन इफ समवन इज पेइंग 1,000 एंड यू आर इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर, कर लो, यू विल लर्न अ लॉट। इंटर्नशाला में जस्ट मेक श्योर कि देयर आर इंटर्नशिप्स जो ट्रेनिंग्स हैं एक्चुअल में, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। दैट्स नॉट एवरीथिंग। मेरे टाइम पे बहुत भरा हुआ था, तो आई डिडंट ट्राई इंटर्नशाला। मेजरली आई हैव गॉट माय अपडेट्स फ्रॉम लिंक्डइन। एंड सर वैसे अब लाइक ओवरऑल अगर एज अ न्यू कमर है, कोई कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया एंड लाइक आप अप्लाई कैसे करोगे सारी चीज़ों को, लाइक बीएसए डेव, इनको लाइक 4 years ऑफ कॉलेज डिवाइड करना हो तो हम किस क्राइटेरिया में फिट करेंगे? हाँ, देखो, फर्स्ट ईयर शुड बी योर डीएसए, जितना कर सकते हो करो, ठीक है। I'll just if I'm able to write, yes I am. एंड लाइक उसमें कोर्स सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाए, डीएसए कोर्स सब्जेक्ट्स। हम सब पहले एक बार कर ही लेते हैं, मतलब फुल चारों ईयर इंस्क्राइब कर देते हैं। देखो देखो, तो फर्स्ट ईयर दिस शुड बी योर डीएसए, जितना दे सकते हो दो। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं किया तो फिर अब इस हिसाब से अपना मैप कर लेना, सेकेंड ईयर में कर लो। फर्स्ट ईयर डीएसए बहुत अच्छे से किया, सेकेंड ईयर डेव कर लो, ठीक है। अब डीएसए पे तुमने बहुत टाइम दे दिया, डेव को बहुत सारा टाइम दो, और मीनवाइल रिवाइज कर लेना डीएसए, व्हिच आई सेड ऑलरेडी। तो डीएसए रिवाइज कर लेना, ठीक है। थर्ड ईयर तुम्हारी मर्जी है, तुमको डेव में बहुत मजा आया डेव करो, तुमको डीएसए में बहुत मजा आया डीएसए करो, ठीक है। मतलब डीएसए डेव इट्स ऑन यू। डीएसए में बहुत मजा आया, जाओ सीपी करके देख लो। डेव में बहुत मजा आया, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए, इंटर्नशिप्स की कोशिश करी, है ना, ठीक है। थर्ड ईयर इज दिस। फोर्थ ईयर इज कीप अप्लाइंग, रिप्लाई वगैरह करो, अप्लाई 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 अप्लाई, और डीएसए डेव सब कुछ रिवाइज करना है। अब देखो व्हाट यू विल गेट इज कि अराउंड इस टाइम पे ना, आई विल से फोर्थ ईयर में तुम अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हो। अब इट इज पॉसिबल कि जब तुम लोग डीएसए कर रहे थे तो तुमने थोड़ा सा ऊप सीख लिया, इट्स पॉसिबल कि नहीं सीखा। अब आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में वी गेट ऊप्स, इफ यू आर फ्रॉम सीएस और नॉट, तो बीच में कहीं पे अगर कॉलेज में पढ़ाया तो पढ़ लिया वो, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाए, ओएस पढ़ाया, पढ़ लिया, बीच में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं थी, बहुत टाइम हमारे पास। इस टाइम पे जब तुम डीएसए के कॉन्टेस्ट लगा रहे हो, मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, तो तुम ओए की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन असेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल कॉन्टेस्ट दिए गए। इस टाइम पे अपना ऊप्स कर लो, सीएन कर लो, ओएस कर लो, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन पढ़ लिया, जो भी, ये सब इस टाइम पे कर लेना, ठीक है। और जब तुम अप्लाई करे जा रहे हो लगातार, तो और ये क्या दिस फोर्थ ईयर के स्टार्ट में ही कर लेना, ये सबको मैक्स 1 month लगता है, 1 महीने से ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें हैं, आज पढ़ोगे फिर रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे, तो बस पढ़ना, और 1 महीना शुड बी इनफ, एंड दिस इज ऑल। और इस टाइम मतलब फोर्थ ईयर के स्टार्ट में यू शुड बी रेडी कि आज अगर इंटरव्यू आ रहा है तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैप योर 4 years. ओके, सो भैया हैकाथॉन्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? हाँ यार, रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैंने हैकाथॉन में कभी पार्ट नहीं लिया, आई स्टिल रिग्रेट दिस। सेकेंड ईयर था ना अपना डेव का, यहाँ पे लो, डेव सीखने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 4 महीने, 3 महीने, 3 to 4 months। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं ना, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अर्श एज वेल
तो अब डेव अप्लाई करने के लिए या तो तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे अपने रिज्यूमे में डालने के लिए, या व्हाट यू कैन डू इज विच इज वेरी गुड, हैकेथॉन में पार्ट ले लो। अब व्हाट यू नीड इज, अब ये 4 साल ना तुमको निकालना है, तुम कॉलेज में भी तो यार मजे भी तो मानने हैं, फेस्ट वगैरह भी तो जाना है, तो यू नीड टू क्रिएट अ ग्रुप। अब ये ग्रुप जो है ना तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब यू कैन क्रिएट 2 ग्रुप्स जिसमें तुम्हारा दिस वन ग्रुप शुड बी, ठीक है यार, जिसके इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट सेम सा है, कि तुम्हारा इंटरेस्ट माइक्रोसॉफ्ट है, उसका इंटरेस्ट भी माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब फैंग है। तुम्हारा इंटरेस्ट वेब डेव है, तो उसका भी तुम्हारा इंटरेस्ट है कि हम हैकाथॉन में बांट लेंगे यार, हम जीसॉक फोड़ेंगे, ठीक है। तो जीसॉक उसका भी इंटरेस्ट है कि यार जीसॉक फोड़ेंगे। अब यू शुड हैव दिस ग्रुप, ये ग्रुप विल हेल्प यू पुश योरसेल्फ, तुम उसको पुश करो, वो तुमको पुश करेगा, और तुम ये 7 जगह जाओ, तुम्हारा आपस में कंपटीशन होना चाहिए। मैंने ना आज एक प्रोजेक्ट बना दिया, तूने क्या किया? मैंने तो भाई कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स देगा बस, है ना। अब तुम बोलोगे ठीक है यार, उसने प्रोजेक्ट बना लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो नेक्स्ट डे तुम बैठोगे प्रोजेक्ट बनाने। तो यू शुड हैव दिस ग्रुप विच, जो कोशिश करना बन जाए ग्रुप, है ना, जो तुम्हें पुश करे। अब यहाँ पे जाना, you will learn a lot. I have recently started seeing hackathons, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। GSOC सेकेंड ईयर में ट्राई करना, फर्स्ट सेकेंड ईयर में GSOC ट्राई करना, GSOC इज गूगल समर ऑफ कोड, यहाँ पे ट्राई करना। फर्स्ट ईयर जब हम डीएसए के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे घूम फिर के, मतलब सीपी वगैरह, हाँ मैंने बोला ना लीड कोड के बाद सीपी वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पे तुम ट्राई कर रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो कि हम अच्छे से 4 स्टार 5 स्टार भी कोशिश कर रहे हो, अगर मन किया तो, है ना। यहाँ पे GSOC ट्राई करना, SIH ट्राई करना, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेटली काम आएगा आपके। अच्छा रोड मैप सेट कर दिया भैया ने। एंड भैया एक क्वेश्चन था मेरे को, एक बात बताओ, मान लो अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, एंड लाइक आप ऑलरेडी SDE एट Amazon रह चुके हो, और हमें उसकी अपॉर्चुनिटीज का लाइक मोस्टली बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पे इसके अपडेट्स आते हैं। इनफैक्ट रिसेशन चल रहा है तो सब ऑलरेडी बैठे कि कुछ नहीं मिलेगा अभी, तो उसके लिए उनको क्या करेक्ट अप्रोच है कि उनका टाइम भी बचे और वो सही जगह भी सर्च कर रहे हो चीजों को, कि वो आसपास ढूंढते हैं, जिनको पता ही नहीं होता उनसे पूछते हैं वो मोस्टली। हाँ देखो, इसके लिए भी एक चीज जो मैंने बता दी कि स्टार्ट फॉलोइंग राइट पीपल, है ना, कि तुमको बैठ के इंस्टाग्राम ही चलाना है तो चलाओ, नो वरीज, बट स्टार्ट फॉलोइंग दोज पीपल जो जॉब्स के बारे में निकाल रहे हैं कि यार ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू है, ठीक है। स्टार्ट फॉलोइंग राइट पीपल। दूसरा व्हाट यू कैन डू इज, if you're let's take that example only, if you're talking about Amazon, तो Amazon में भी there are people जो मतलब जो थोड़ी इन्फ्लुएंसर वाली लाइन में जा रखे हैं, मतलब नॉट इन्फ्लुएंसर एग्जैक्टली, बट जो एक्चुअली में चीजें पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन पे कि देखो यार ये इंटरव्यू निकला है, तुमको रेफरल चाहिए तो मैं दे देता हूँ, ऐसा करके। सेकेंड थिंग कि रिसेशन चल रहा है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं, कैसे रिसेशन जाने के कगार पे है। सो I know that Amazon fired a lot of people recently, but Amazon has rehired उसके ज़्यादा ही लोग एक्चुअली में। तो हाँ, फ्रेशर्स के लिए देयर इज अ प्रॉब्लम एट दिस टाइम, बट जितने भी लोग उन्होंने फायर किए, उन्होंने थोड़े ज़्यादा ही हायर करके दूसरी टीम में लिया है। तो जैसे इन Amazon, Alexa की टीम was fired because they are not innovating as of now, but more people, but more, thanks, sorry, so but more people were hired from different teams, so Alexa से hire नहीं करके उन्होंने दूसरे टीमों में इन चीजें डाली हैं। फॉर एग्जांपल अटलास्ट ने भी रिसेंटली ले ऑफ किया है, अटलास्ट ने भी लोग निकाले हैं, बट उससे ज्यादा हायर वापस कर लिए हैं। तो द गुड थिंग इज, जब हम लोग जो चीजें टारगेट कर रहे हैं ना, वो हमेशा रहेंगी। मतलब हम सॉफ्टवेयर के पीछे, सॉफ्टवेयर जॉब्स के पीछे जा रहे हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जॉब्स। द ट्रूथ इज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अच्छे नहीं है हमारे पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो बहुत हैं, I think there was a number that 16 lakh students are graduated every year, but अच्छे इंजीनियर्स नहीं है। इंजीनियर्स तो हैं बट अच्छे इंजीनियर्स नहीं है। तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रही है, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, तो हु विल हायर यू, है ना। तो
सीटें भरो मत, तो you need to become a अच्छा इंजीनियर। कैसे बनोगे? ऑब्वियसली यू नीड टू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमने डीएसए के बारे में बात कर ली, डीएसए क्या है? डेटा हमको स्टैक नहीं आना चाहिए। स्टैक क्या होता है ये नहीं होता है। तुमको ये होना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसमें तुम स्टैक लगा के कैसे सॉल्व कर दोगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इवेंचुअली तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में जाओगे तो आएंगी। किसी के पास प्रॉब्लम आया कि यार बहुत सारे लोग हैं, इनको सॉर्ट कैसे करूं, ये ऊपर पे आ जाए, ये नीचे आ जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स इवेंचुअली दिखेंगी तुम्हें, तो तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू नो हाउ थिंग्स वर्क, कैसे काम करता है सिस्टम, कैसे काम करता है ब्राउजर। ठीक है, तो ऐसे अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए ऑब्वियसली मैं बोलूँगा मेरे से खराब टाइम है तुम लोगों का। तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट इट्स नॉट दैट कि अगेन कंपटीशन के साथ साथ खराब लोग भी बढ़ गए हैं। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी वैसे ही, जैसे जैसे देखो आफ्टर कोविड ना, यू हैव सीन दिस कि देयर इज अ बूम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, एंड दिस बूम विल ऑलवेज इंक्रीज। क्योंकि हम पहले खाना लेने के लिए बाहर जाते थे, आज हम जोमेटो करते हैं। देर इज कल पहले हम सब्जी लेने चले जाया करते थे, आज हम ब्लिंकिट करते हैं। तो ये सारी जॉब्स क्रिएट हो रही है ना, ये सारी जॉब्स रहेंगी ही हमेशा। ऑल्सो आफ्टर 40-50 देर आर वेरी लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, चले जाते हैं लोग छोड़ के, तो जॉब्स हमेशा ही बनती रहती है। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो कि नहीं लगेगी जॉब, लग जाएगी। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों। That's right. So, you have any other भैया questions, Virat? Yeah, we'll start with the Q&A. Sure. एक्चुअली मेरे को पूछना था कि अगर किसी ने एमएल में इंटर्न कर रखा है तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकता है उस पोजीशन को ऐड करके रिज्यूमे में? हाँ बिल्कुल। देखो, डज नॉट मैटर कि तुमने क्या किया है। तुम्हारे रिज्यूमे में वेब डेव लिखा है तो तुम मतलब ऑब्वियसली एमएल तुमने किया है, मान लो एमएल इंटर्नशिप तुमने करी है, अब तुमको वेब डेवलप के लिए थोड़ा सा जॉब के लिए डालना है, तो हम ऑब्वियसली थोड़ा सा चीज़ें वो पूछेंगे तुमसे, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पूछ लेंगे कि क्या तुमको इतना आता है, और फिर वो तुम जा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको वही जॉब, अब तुमने वेब डेव का इंटरव्यू दे दिया, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको अंदर जाके, इफ इट्स अ बिग कंपनी, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको वेब डेव की ही जॉब मिलेगी। इट्स पॉसिबल तुम्हें एंड्रॉइड मिल जाए, ठीक है, तुमको कुछ और जॉब मिल जाए। तो हाँ, थोड़ा सा तुमको नॉलेज चाहिए होगा ऑब्वियसली, कि वो पूछेंगे क्योंकि, तो थोड़ा सा भर के कुछ भी कर सकते हो। नॉट ऐसा कुछ जरूरी नहीं एमएल किया तो तुम्हें एमएल की जॉब्स के पीछे ही भागना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट एमएल या डेटा साइंसेज कि हम लोग कॉलेज लाइफ में बहुत बूंद, दिस इज अ वेरी बिग सी जिसका हम बहुत छोटा सा बूंद छू पाते हैं। डेटा साइंस इज एक्चुअली वेरी डीप, जिसका हम सिर्फ छोटा सा पोर्शन छू पाते हैं। तो इट्स नेसेसरी की, इसलिए इसलिए आई सजेस्ट वेब डेव या एंड्रॉइड वगैरह कर लिया करो। बट ठीक है, if अच्छी बात है, इंटर्नशिप है तुम्हारी तो यू शुड हैव सम नॉलेज अराउंड देयर। अब तुम चेंज कर सकते हो, डज नॉट मैटर। एक्चुअली ये सैमसंग प्रिज्म करके एक में सॉर्ट हुआ था एज ए इंटर्न, जिसका एमएल इंटर्न था रोल सैमसंग आर&डी के लिए, तो वो बेनिफिशियल है ना? नहीं, नो वरीज, कर सकते हो। And sir, we have a question. Someone is asking कि event organize कराना, is it relevant कि हम events organize कराने चाहिए, या फिर कुछ ambassadors बन जाओ, किसी community में part ले लो, beneficial है ये सब? देखो, आई स्टार्टेड, मैंने बोला भी था शायद, मैंने टीए करना स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन स्किल्स चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने टीए कर लिया। अब सपोज, अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, इधर यू हैव अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तुम किसी के साथ जाके बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया है, नो वरीज। तुमको नहीं करवाना है इवेंट ऑर्गेनाइज, मत कराओ, ठीक है, तुमको घर रहना है। बट अगर इफ यू आर अफ कि ठीक है हम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है या एवरेज है, तो प्लीज हाँ आप जाइए यहाँ पे, आप ऑर्गेनाइज कराइए या जो भी थोड़ा पार्ट लो, एम्बेसडर वगैरह बनो। उससे पता है होता क्या, यू विल मीट बहुत सारे लोग, यू विल क्रिएट कनेक्शंस। ये कनेक्शंस बन गए, अब तुम्हारे कनेक्शंस बन गए, अब तुम्हारे सीनियर्स के साथ कनेक्शन बन गए। अब तुम्हारे सीनियर चले गए माइक्रोसॉफ्ट, तुम्हारे पास रेफरल हो गया है ना, क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ काम किया। ठीक है, या फिर तुम्हारे सीनियर के दोस्त चले गए या जो भी, ठीक है, तो ऑब्वियसली और सीखने को तो मिलता ही, तो हाँ, और मजा भी आता है, तो फन भी हो गया और तुमने सीखा भी बहुत कुछ और तुम्हारे कनेक्शंस भी बन गए, तीनों चीजें हो गई। And we have कि someone is asking game dev की value है आगे कि नहीं?
थोड़ा सा छोटा इंडस्ट्री है और आई एम नॉट अवेयर ऑफ मच, बट बिल्कुल है यार। यार ये जो चीजें है ना, गेम इंडस्ट्री हो गई या डेटा साइंस वगैरह हो गया, इसमें ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता, तुमको बहुत अच्छा होना होता है। तो अगर हाँ तुमको बहुत मजा आता है, तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स बना रखे हैं, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव या फिर तुम बढ़िया कोड कर लेते हो, तो बिल्कुल। या तो देखो दो चीजें हैं, तुमको कहीं ना कहीं तो प्रो बनना पड़ेगा, या तो तुम एवरेज रह जाओ, या तो तुम सब चीज में एवरेज हो, बहुत बढ़िया ठीक है। तो तुम फिर वो वाली टॉपिक्स चूज करो जो कॉमन है, जिससे तुम हर जगह, जैसे लोग वेब डेव क्यों चूज करते हैं, बिकॉज आफ्टर डूइंग वेब डेव वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो आगे जाके एमएल भी कर सकते हैं, वो आगे जाके एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो कॉमन है, वो हर जगह फील्ड में यूज हो जाएगा। अब जो स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे डेटा साइंस वगैरह हो गया, अब डेटा साइंस करके इट्स पॉसिबल कि तुम वेब डेव की चीजें ना कर पाओ, तो इन सब चीजों में यू शुड हैव डीप नॉलेज। ठीक है, कर सकते हो, अगर तुमको बहुत बढ़िया नॉलेज है तो हाँ ऑब्वियसली चलेगा। एंड हमें समवन इज आस्किंग, हमें पैसा देखना चाहिए या रोल फॉर प्लेसमेंट्स? पैसा देखना चाहिए या रोल फॉर प्लेसमेंट? रोल फॉर प्लेसमेंट, लाइक किस रोल पे आपको मिल रही है? हाँ, दोनों चीजें मैटर करती हैं यार। देखो मैंने जेई से शुरू किया था, तो आई वॉज गेटिंग सिविल इंजीनियरिंग इन डीटीयू एंड आई वॉज गेटिंग इंफॉर्मेट आईटी इन मेट। आई चोज आईटी इन मेट। अब डीटीयू छोड़ दिया, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है, मैं 2-3 बार गया हूँ, मैं दोनों तीनों बार खो गया हूँ। तो अब आई लेफ्ट दैट कॉलेज फॉर माई ब्रांच, कि मुझे उस टाइम ब्रांच प्रेफर करना था। अब योर सिनेरियो कैन डिफर। अब मान लो तुमको इन्फोसिस दे रहा है 8 LPA और तुमसे वो काम करवाएगा सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजीज में। सिमिलरली कोई दूसरी कंपनी दे रही है 6 LPA बट स्टार्टअप है, बढ़िया काम होगा, तो चूज दैट 6 LPA वाला जॉब, तुम बहुत जल्दी स्विच कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ है कि सिमिलर सी जॉब है दोनों में, अब प्रोफाइल थोड़ा सा इसमें खराब है, लेकिन हाँ आगे पॉसिबिलिटी है कि चेंज कर पाओगे, तो हाँ भाई ज्यादा पैसे चूज कर लो, ज्यादा बेनिफिट्स चूज कर लो। तो देख लेना, सिंपल वन लाइनर इज कि uh, आगे क्या प्लान है, आगे 5-7 साल सोच के कर लेना। ऑलराइट, गौरांश आपको कुछ पूछना है? लेकिन सर सॉरी वो स्पैम मैसेज बार बार रिपीट करने के लिए, लेकिन मेरे को बहुत टाइम से डाउट है कि एआई की वजह से जो ऑटोमेटेड जॉब्स हो रही है, लाइक ऑटोमेशन बढ़ रही है, सो हमें उस फील्ड में जाना चाहिए या फिर हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स फील्ड में ट्राई करना चाहिए, डेटा साइंस, जहाँ पे अभी एआई नहीं कर पा रहा वैसे? देखो मतलब what exactly is your question, कि हमें एआई जॉब छीन लेगी हमारी तो हमको एआई कर लेना चाहिए ऐसा, या फिर एआई जो जॉब्स नहीं छीन पाई हमें उसमें जाना चाहिए? मतलब एआई जॉब्स छीन लेगी इज अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट ट्रू। देखो आई विल गिव यू वन नंबर। जब चैट जीपीटी वाज रिलीज, तो चैट जीपीटी के जो क्वेश्चन, तुम कोड के क्वेश्चंस पूछोगे कि प्लीज कोड दिस, इफ यू विल आस्क चैट जीपीटी प्लीज कोड दिस, तो वो 75% ऑफ द टाइम सही बताता था। अब इट्स बीन 4-5 months, अब वो 25% टाइम सही बताता है। तो जो जो डेटा मॉडल पे वो ट्रेन है उसको हम खराब कर रहे हैं, मतलब जो यूजर्स हैं वो खराब कर रहे हैं, हम उसको गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, गलत सॉल्यूशंस देते हैं। तो आई डोंट थिंक एआई विल टेक आवर जॉब्स, बट हाँ इट्स अ वेरी लॉन्ग रन, क्योंकि एआई को भी तो अपन ही डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, Yes. तो एआई तो बहुत दिनों बाद, आई स्टिल डाउट कि 20 साल बाद भी वो जॉब्स ले पाएगा हमारी। वहाँ वहाँ इट्स पॉसिबल कि वो हमारी हमारे जॉब को इजी कर देगा। इट्स पॉसिबल कि अच्छे इंजीनियर्स आ रहे होंगे, कि रेदर देन कोई भी एवरेज इंजीनियर्स दे विल स्टार्ट, क्योंकि अब एवरेज इंजीनियर्स का काम तो चैट जीपीटी से पूछ के क्या पता हो जाए, क्या पता, नॉट श्योर। तो अब यू नीड टू बी अ बेटर इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर्स हायर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जॉब चली जाएंगी, बस हाँ जॉब रिफाइन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एंड इफ अब ये जो डेटा साइंस वाली बात आपने पूछी, एक्सप्लोर करो, मैंने बोला ना ये जो सेकंड ईयर है इसमें एक्सप्लोर करो, तुमको एआई में मजा आ रहा है करो, डेटा साइंस में मजा आ रहा है करो, जिसमें फन आ रहा है वो करो। और फिर उसके बाद, क्योंकि इट्स नॉट कि डेटा साइंस कर लिया तो तुमको वो नहीं मिलेगा, तुमको जॉब्स नहीं मिलेंगी, उसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स। एआई कर लिया उसमें भी अच्छी जॉब्स है, वेब डेव कर लिया उसमें भी अच्छी जॉब्स हैं,
तो एक बार वही करना जो तुमको मजा, कि देखो सब लोग कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत बोरिंग जॉब है अगर तुम्हें मजा नहीं आता तो। इट्स अ वेरी, 8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे, अगर तुमको फन नहीं आ रहा तो फिर बहुत बोरिंग जॉब है। प्लीज मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग यू आर हैविंग फन इन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस थैंक यू। Okay, we have Harshdeep asking, if you don't mind, I'm asking आपकी salary कितनी है? गूगल करो, गूगल करो अटलाशियन चलो की एक सैलरी। काम करते हैं, स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं, आप लाइक रेंज बता सकते हैं इनको, that would work as well, not What? just yours, आप एवरेज रोल ले लो Atlassian पे या किसी भी at the same level of company. I'll tell you 2023 में किस पे हार हुए थे लोग। So 2023 मतलब अभी जो फ्रेशर्स ज्वाइन किया है, the quote amount is I think 80 LPA. अब I'll break this down for you. Their base is 21, मतलब एक साल में they are earning 21 in hand, जिसको in hand बोलते हैं ना। उसके बाद their stock is per year around 12, not sure, मतलब ये numbers can differ। तो 12 के stock मिलेंगे after 1 year, और फिर हर दो मतलब ये जो अराउंड 75,000 डॉलर्स के स्टॉक्स हैं उनके पास। ठीक है, तो $75,000 के स्टॉक्स हैं, तो ये कुछ 10-12 लाख रुपए हुए साल के, और फिर 2-3 लाख का बोनस है, ऐसा कुछ। तो ये कट के मतलब पर ईयर दे आर अर्निंग 33-34 ऐसा कुछ। And sir, Sahil Joshi is asking कि analyst के रोल करने के बाद how to switch to software engineer role. सेम प्रोसेस है यार जो मेजरली फ्रेशर्स का भी होता है, कि इफ यू वांट टू पहले तो सीख लो चीजें। अगर फैंग टारगेट कर रहे हो तो पहले डीएसए कर लेना, तुम्हारा एनालिस्ट वाला रोल उतना मैटर नहीं करेगा, मतलब एनालिस्ट या डेव चेंज मैटर नहीं करेगा। पहले सीए डीएसए कर लेना बहुत सारा, अब तुम्हारा हो गया डीएसए, यू आर प्रो इन इट, देन डू सम वेब डेवलपमेंट। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज समवेयर तो तुमको सिस्टम डिजाइन भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज फॉर फ्रेशर्स सिस्टम डिजाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो सिस्टम डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम डिजाइन पढ़ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर राउंड होगा सिस्टम डिजाइन का जो तुमको करना पड़ेगा। तो डीएसए, सिस्टम डिजाइन, एंड देन थोड़ा सा डेव, जो तुम सिस्टम डिजाइन के टाइम पे पढ़ ही रहे हो। तो ऑब्वियसली जो देखो होता क्या है कि अगर आपको एसडी रोल के लिए अप्लाई करना है तो एसडी रोल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वही सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो एसडी रोल के लिए लोग पढ़ रहे हैं, वही डीएसए, डेव और थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन। And भैया अच्छे से प्रोजेक्ट्स कहाँ से ढूंढने चाहिए which are innovative, like someone is saying कि उसे एंड्रॉइड अच्छे से आती है, बट जैसे आपने बताया मैंने मेजरली क्लोन्स ही बनाए हैं एंड अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं मिले उसको। देखो क्लोन्स आर नॉट बैड, ऐसा कुछ खराब नहीं होता, आई मेड क्लोन्स, पर व्हाट यू शुड डू इज कि अपने आसपास देखो कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, कि तुम सुबह उठे और तुमको ना मम्मी ने बोला दूध लेके आ, अब तुमको बोला ठीक है यार अब दूध लेने खुद जाना पड़ेगा, ये तो मुश्किल काम है, क्या मैं एक ऐप बना सकता हूँ जो मेरे लिए दूध ऑर्डर कर देगा, जो रोज सुबह 7:30 बजे खुद से दूध ऑर्डर कर देगा। तो अब तुम्हारे पास आइडिया आ गया, बना दो, है ना। अब व्हाट यू कैन डू इज जैसे जैसे बनाओगे टाइम लगेगा, फीचर्स ऐड कर दो, लोगों से पूछो कि मम्मी दूध लेने के लिए आपको और कुछ चाहिए होगा, तो दे विल से कि ठीक है भाई एक काम कर, कैश एक पेमेंट गेटवे बना दे, या फिर दे विल से कि ठीक है दूध के साथ ना हमें ये चीजें भी चाहिए। ठीक है, अब क्लोन्स भी ना, मतलब अगर तुम क्लोन्स भी बना रहे हो तो इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट क्लोन, ध्यान रखना कि क्लोन में ये उठा के ये नहीं बना दिया, क्योंकि दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्यों बनाया, क्यों ये तुमने प्रोजेक्ट तो बना दिया पर क्यों बनाया, तो यू विल हैव टू आंसर देम कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या तो तुम सिंपली बोल सकते हो कि यार आई वाज ट्राइंग टू लर्न दिस डोमेन एंड इसलिए मैंने बना दिया, या व्हाट यू कैन डू इज कि तुम बोलो कि यार ठीक है तुमने नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया और तुमने बोला कि नेटफ्लिक्स मैंने क्लोन तो बनाया पर इसमें ये जो फीचर है ये मेरा है, मेरे को मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था मुझे ये फीचर नहीं दिखा, तो मैंने अपनी तरफ से वो फीचर डाला और मैंने ये जो क्लोन है ना ये इसमें ये फीचर है, तो और उसको अपने रिज्यूमे में दिखाना कि नेटफ्लिक्स बट विद दिस फीचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें।
Okay, so we are almost done with our Q&A, and we have one last question. Ki when does Atlassian hires for off-campus generally? Majorly between August to September, October. So around this time, and then again in majorly August to December वाला phase जो होता है, till September, October they hire mostly. Okay, so we are wrapping up with the session now, and thank you, sir. Even you seem to be exhausted by now. No And worries. thank you to the audience as well for being really active throughout the session. And we'll be conducting our next session on 12th August. So, and it is really going to be informative as well. So see you all there, and thank you so much, sir, for your valuable time. Yeah. Yes, sir. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thanks, Suraj. Thanks, everyone. Okay. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye.